congratulations on putting together such an amazing all-women panel. Every one of us is quite a trailblazer in our own right, and we're very happy to be sharing space with each other. So thank you for making me a part of this. I think one of the first few things that I realized when I was much younger, I was in my early 20s, I just started working in film. I realized that I have this extraordinary opportunity and privilege to, get people to listen. And when I realized that there was incredible work happening by scientists, by conservationists, by activists, but it was happening in silos. And the work that they were doing and the urgency with which the work was being done was not reaching civil society. And I realized that maybe I could play a part here in humanizing these stories, in giving a more emotional human context to what was being learned on the ground, whether it was, bridging the gap between science and civil society. You mentioned, yes, that I know data on my fingertips and statistics on my fingertips, but I think what I care more about than the statistics and the data is the human stories behind these statistics and data, because behind every number is a person, a real living, thinking, feeling human being. And more often than not, especially in the climate space, it's a woman or a child. And I think it has been the greatest privilege of my life to use my platform to bring those stories to people and to humanize climate action. And what also I think I've realized with time, and that's been a very big part of my learning, is that, when climate news started to emerge, it felt like something abstract that was happening in the distance, that was intangible, that you couldn't really feel or understand. There was an iceberg melting in the distance, a polar bear looking emaciated. It didn't feel like something that was happening to us. But in the last decade or so, these are things that are happening to us. We, as urban city dwellers, are feeling the intensity of the heat. We, as urban city dwellers, are feeling the intensity of the rains and the kind of impact that has on our lives and our livelihoods. And beyond that, I think we are all kind of realizing the impact of pollution, whether that is air pollution or water or soil or the other pollutions that are causing the kind of ill health that we're all experiencing as families. Now, this is happening in real time. It's happening to us. And therefore, I think it's easier to make people remember and understand that we all have a part to play in fixing the problem. And that it's no longer something that is going to happen in the remote, distant future. It is happening right now. What can happen is that people can feel overwhelmed and it can put them off. And people develop an ostrich mentality. They kind of look away and they say, koi aur kar lega. So you develop a state of apathy because you feel helpless because of the enormity of the problem. Kachra, 9,000 tons a day. Who's going to deal with that? It feels like a lot to do. But there are women here who decided to do something about it. And there are many more people. I mean, something that I'm wearing right now. This is a textile recycling brand, Pivand, that only makes clothes with, upcycled textile waste. So action is possible, and the apathy has to be replaced with hope. And the hope, like Dr. Jane Goodall so beautifully and eloquently reminded us over. ठीक है, नहीं होगा. I understand 100%. We are not living in an extreme developed country, but we can bring change if we all work together. सबके अंदर आना ये जरूरी है. Then only we'll be able to make change. I have been saying this to the
people of my place, Mumra, that you cannot just expect me to clean again and again and again. That's my job. I will do that for you as a corporator. But your job is also to take care of the surrounding. Do not throw कचरा भी. एक स्पीकर ने बताया अपनी स्पीच में कि कचरे के इतना मतलब लोगों को ये सिविक सेंस भी लैक कर रहा है कि वो उसके अंदर अलमारी डाल देते हैं. मतलब एनीथिंग दैट यू डोंट वांट इन योर हाउस यू थ्रो इन द गटर, और फिर वो आगे जाके बारिश में ब्लॉक हो जाता है. ज्योग्राफी इज रियली वास्ट, एनवायरनमेंट इज वास्ट. वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि पत्थर से गाना दिल, आई डोंट नो द सॉन्ग आल्सो, ठीक है, उसका ट्रेंड है. हम किसी भी चीज को ट्रेंड पे लेके आ जाते हैं एंड वी आर मेकिंग थिंग्स फेमस, वी आर मेकिंग पीपल फेमस. Why aren't we talking about what's happening in the world? चाहे फिर वो एनवायरनमेंट के ताल्लुकात से हो या लोगों की जिंदगी के ताल्लुकात से. हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि हमको इंसान की जिंदगी, झाड़ पेड़ की जिंदगी, हमारी खुद की जिंदगी की पड़ी नहीं है. वी लिविंग जस्ट हर रोज उठ रहा है, काम कर रहे हैं, एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द बिगर वर्ल्ड, इन द बिगर पिक्चर. दैट गर्ल ग्रेटा थनबर्ग इज 22 years old. हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं हमारी आधी उम्र की है. आप लोगों की, मेरे से थोड़ी ही छोटी है, बाकी लोगों की वो आधी उम्र की है. एंड शी इज टेकिंग ऑल द लोड ऑन हर शोल्डर्स. सो माय पॉइंट इज कि हमें जागना जरूरी है. मैं मुंब्रा से आती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, स्टेज पर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं. बट माय पॉइंट इज वी शुड स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बेसिक. जैसे हमारी आदत है, हम देखो अगर हम इफ वी आर गोइंग टू दुबई या हम कोई ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पर बहुत हाई रूल्स रेगुलेशन है, तो हम कचरा डालने से खुद ही डरते हैं, हमको खुद ही बुरा फील होता है. बट इफ यू गो टू प्लेस लाइक मुंब्रा या इफ यू गो टू अ प्लेस जहाँ पर कचरा आपको कॉमनली दिखता है, तो आपको बुरा नहीं लगता कचरा डालने में. व्हाई इज इट? यू हैव टू ब्रेक दैट एटीट्यूड. आपको आपके दिमाग से ये निकालना जरूरी है कि आपको तो कचरा ही है, यहाँ पे और कचरा डाल देंगे तो क्या होगा? तुम डालोगे, मैं डालूंगी तो वो कचरा बढ़ेगा. So वो कचरा बढ़ेगा. So you have to break that attitude. It's all your psychology. I'm not a very big change maker. I don't believe that. I'm not a very big change maker. But what I have started doing, what I have told my staff to do, is that whenever we are in the car, if we are passing by Mumra, Kalba, Bandra, anywhere, चाहे साफ जगह हो जहाँ पे बहुत लोग रहते हो, या चाहे ऐसी जगह हो जहाँ पर स्लम एरिया हो जहाँ पे ऑलरेडी कचरा है, हम अपना कचरा जब तक गाड़ी में रखेंगे जब तक हमको कोई कचरे का डब्बा या सफाई का डब्बा. माय फादर ही सेज कि डोंट कॉल जो साफ सफाई करते हैं उनको कचरे वाला बोलना हमारे घर में अलाउड नहीं है. कॉल देम सफाई वाला, बिकॉज कचरे वाले हम हैं जो कचरा बोलते. तो हम कचरे वाले हैं, हम गंदे लोग हैं, बिकॉज वी थ्रो एवरीथिंग बाहर. वो तो बेचारे साफ सफाई करते हैं. सर, इन्वायरमेंट चेंज को लेके आपने एक मुहिम छेड़ा यहाँ पे कार्टर रोड में. बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए, पॉलिटिशियन भी आए, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से आज का दिन रहा? आज जो यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट एक्चुअली COP30 ब्राज़ील एक एनवायरनमेंट का जो एक प्रोग्राम है जो ब्राज़ील में होने वाला है, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं. और हम सब यहाँ पे एनवायरनमेंटलिस्ट है जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. हमारे साथ में जिदान कास्टिलियानो, इरफान भाई, सार्थक भाई, सब लोग हैं. एनवायरनमेंट पे हम लोग काम करते हैं. आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या था, दैट आई थिंक जिदान विल टेल यू मोर अबाउट इट. जिदान प्लीज. हाँ, सभी को मेरा जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पहले हमारा यही मकसद है कि पर्यावरण और लोगों को एक साथ जुड़ना, यही तो पहली बात है. और मेरे ख्याल से तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे डाइवर्स एनवायरमेंटल ट्रेजर्स है. SGNP मानो या फिर आप मैनग्रोव्स मानो, जो मुंबई के मैनग्रोव्स है. तो मुझे यही बस बोलना है कि एज मुंबई वी आर कमिंग टुगेदर, और वी आर कमिंग टुगेदर यही बात से क्योंकि COP30 जो जैसे फुरकान भाई ने बोला है, COP30 जो ब्राज़ील में होने वाला है, हमें यही बस ब्राज़ील और पूरे विश्व को बताना है कि मुंबई इज़ ऑन द फोरफ्रंट. मुंबई आगे है और मुंबई कर यही लोग भी आगे आ चुके हैं. फॉर द प्लानट, फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए तो हम अखंडता से तो प्रचंडता करेंगे और क्या. डेफिनेटली. सार्थक भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ये सबको नमस्कार.
आज हम यहाँ सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सब सोशल वर्कर्स सब आज एक इकट्ठे हुए थे। हम किसी कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट किसी चीज़ के लिए, आज हम सब इकट्ठे थे इन्वायरमेंट के लिए, अपनी दुनिया के लिए। बिकॉज हम सबका ये मानना है कि शुरुआत एक कदम एक स्टेप से होती है। हम आज एक स्टेप यहाँ लेंगे, दूसरा स्टेप शायद ब्राज़ील में लिया जाएगा, जो हमारे देश में हम सबके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, जिसको हम आज सस्टेन करेंगे, वो कल हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी बनेगी। थैंक यू। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनवायरनमेंट के लिए लोग अक्सर बहुत सारी एनजीओज़ काम करती है, लेकिन इसके बारे में ठोस तरीके से कोई सोचना नहीं चाहता। 4 दिन अगर मैं 4 प्लास्टिक उठा लूँ, उससे ये एनवायरनमेंट का सलूशन निकलेगा नहीं। आज आपको मैं बता दूं कि ये जगह पर मैं पैदा हुआ हूँ, ये समंदर है सामने, आप यहाँ पे मैंग्रोव्स देखते होंगे। एक वक्त ऐसा था कि हम लोगों को डर लगता था अंदर जाने के, इतने घना जंगल था ये मैंग्रोव्स का, आज पूरा गायब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कि हम लोग मैंग्रोव्स को रीग्रो कैसे करेंगे। और दूसरा, जितना तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चालू है बिल्डिंग्स का, उससे पूरे एनवायरनमेंट में आप बोलो एयर पोल्यूशन ख़राब हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर बात की जाए, सरकार इस पर ध्यान दे, मैंग्रोव्स को रीग्रो किया जाए, फिर से इनके बीज डाला जाए। मैंग्रोव्स को बचाने की बात हम लोग करते, लेकिन इनको वापस से रीग्रो करने की बात हम लोग नहीं करते। जो है उन्हीं को बचाना है कि हमें उनको आगे भी बढ़ाना है। तो हमको मैंग्रोव्स बचाना भी है, मैंग्रोव्स बढ़ाना भी है। और रही बात ये कंस्ट्रक्शन की वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है, एयर क्वालिटी हमारी इंडेक्स में इतनी ख़राब हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर है, हमारे जो सीएम है और हमारे जो माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, वो इस पर लगाम लगाए, इनको एक ताकीद की जाए कि ये जो पोल्यूशन है इसको किस तरीके से रोका जाए और इसके अंदर अपन एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे गार्डन को एक परसेंटेज दिया जाए, टेरिस है, वर्टिकल गार्डन है, इसके ऊपर हम लोग काम क्यों नहीं करते। तो बस ये था कि हम लोगों की आज फुरकान भाई और जीदान भाई, हमारे सार्थक, ये सारे हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर बात की कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि लोग इसके ऊपर जुड़े। हम चाहते हैं कि हर कोई इस पर जुड़े, लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं कि भाई हर कोई इस पर आके खुलकर बात करे। इस हम लोगों को एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जब तक हम इन पर बात नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। सर आप यहाँ पे डिस्पोजल यूज़ कर रहे हो कागज़ का, लोग प्लास्टिक का बॉटल यूज़ करते हैं, उससे भी क्या कुछ नुकसान होता है? प्लास्टिक के बॉटल, हाँ, प्लास्टिक के जो बॉटल होते हैं, पहली बात तो यही है कि जो लोग वो छोटे वाले बॉटल से पानी पीते हैं, वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। आपका जो 10 रुपया 20 रुपया वैसे ही फेंक जाते हैं। तो फिर मेरा यही बस बोलना है कि जो प्लास्टिक है इट इज़ हार्मफुल। जब आप प्लास्टिक को फेंकते हो तो वो प्लास्टिक जो है इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक का जो डेग्रेडेशन होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स जो होता है, इट हार्म्स द सॉइल, इट हार्म्स द मैंग्रोव्स, इट हार्म्स द बायोडाइवर्सिटी। और मेरा यही बोलना है कि यू कैन यूज़ अ स्टील बॉटल, यू कैन यूज़ अ ग्लास बॉटल, बट डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ वेरी 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 हार्मफुल फॉर नेचर। सर लास्टली क्या मैसेज रहेगा आपका जनता से? लास्टली, मुंबई सिटीज़न क्लाइमेट एक्शन डायलॉग में हमारे जितने भी गेस्ट आए थे, दिया मिर्ज़ा जी, हमारी डॉक्टर मनीषा ताई कायंडे, आमदार विद्या ताई चौहान, जितने भी एनवायरनमेंट से, हमारे एनवायरनमेंट से नताशा डिकोस्टा मैम है, गुलियानी मैम है, यश अग्रवाल जी है, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। हर एक इंसान कुछ, एटलीस्ट एक छोटा सा रैपर भी होता है, तो उसको रोड पे ना फेंके। वो जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं जाके डंप होने में बहुत टाइम लगता है। अपने हिसाब से एक फ़ैन का बटन चालू करना 10 मिनट पहले अगर बंद कर देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों से भी हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फुरकान में सार्थक, हम लोग सिद्धांत, हम लोग सब लोग ने मिलकर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था कि एक पेड़ मेरा भी। ये सुनने में एक छोटा सा लगता है कि एक पेड़ मेरा, वरना अगर हम लोग सब लोगों ने मिलकर, सारी जनता ने मिलकर एक एक पेड़ लगा दी, तो मेरे को ऐसा लगता है हम जितनी आबादी को काउंट करेंगे, 1 करोड़ 40 लाख की जो 140 करोड़ की जो आबादी है, 140 करोड़ पेड़ हम लोग लगा सकते हैं अगर हर किसी ने एक पेड़ खुद लगाया तो। थैंक यू।